लोकतंत्र का हत्यारा पीएम प्रधानमंत्री, खास विशेष बात में इंडिया टुडे पुलिस न्यूज की तरफ से लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला, राजस्थान में सरकार गिराने वाला, मध्य प्रदेश की सरकार को तहस नहस करने वाला, जो जिसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उससे राम मंदिर, अरे हम तो कह रहे हैं कि अयोध्या धस जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन इसके हाथ राम मंदिर का शिलान्यास नहीं होना चाहिए। और ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये ब्राह्मण नहीं है, इसके पूर्वज यहूदी थे। इनको किसी भी ब्राह्मण और किसी भी सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं। टीका लगा लेने से, लंबा टीका मधुरी बानी दगाबाज की यही निशानी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनवाए थे। आप लोग कह रहे हैं कि शिलान्यास कराने जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हे परमात्मा, हे नारायण, अगर पृथ्वी पे हैं तो इसके हाथ से शिलान्यास होने से अच्छा है कि अयोध्या धंस जाए। आप राम मंदिर की जगह फैक्ट्री खोलवाते, विद्यालय खोलवाते, ये तमाम तरह की अर्थव्यवस्था। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री चाइना के आगे घुटने टेक दिया हो, उस देश के प्रधानमंत्री से इस देशवासियों को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री हमको एक चीज बता दें और देशवासियों को संबोधित करके बता दें। देखिए, स्टार नसरुद्दीन शाह खास ने कहा है कि पीएम जो है एक जबरदस्त घटिया और जो है बहादुर कंपनी का खास आदमी है। देखिए, सुनिए, कहीं फौजों की टुकड़ियां बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं। ये कैसे सौदागर आए हैं इस मुल्क में? सारा मुल्क पंसारी की दुकान बन गया है। मालूम न था कि इतना कुछ है घर में बेचने के लिए। जमीन से लेकर जमीर तक सब बिक रहा है, सब बिकता जा रहा है। सनसनी को चीरती हुई खास खबर। देखिए, रईसा अंसारी को खास अंदाज में इंग्लिश टू इंग्लिश जबरदस्त निर्भयता से बोलती हुई रईसा अंसारी, सनसनी को चीरती हुई खास रिपोर्ट, इंडिया टुडे पुलिस न्यूज लाइव। How they will earn? One day here is open, one day here is open. There is no rush. There is no people. But what the decision from the collector and Modi and Nagar Nigam, that we will not stay and run our hand cut on the road. How it is possible? Or they are giving us large amount of money, large amount of money. This Nagar Nigam says very badly us. Run away from here, run away from here. Where we will go? Where we will go? My question is that where we will go? Who will survive our family? Who will earn to our family? How it is possible? We are not selling fruits, we are not selling vegetables. Then how we will survive our families? How we will give our children? What? हम जहर खा लें या मर जाए, या कलेक्टर के घर पे जाके मर जाए, या मोदी के यहाँ जाके मर जाए, या इस नगर निगम के गले पड़ जाए। किसके गले पड़े? किसके गले पड़े? ये मंडी आज से नहीं है, हमारी 6 से 7 पीढ़ी जा चुकी है। Here we are from the heritage family. We are selling fruits from 55 to 65 years. My father is 75 years old. He was also selling the fruits and vegetables. How many years you are selling such things here? I am selling mangoes. Mangoes. How many years you are here? From my age. What's your education? My education is PhD in material science. Then why you are not preferring any other job? I was there, but I am not ready to do job because private job is not a job. What's your earning today per day? Today there is no earning. So only normal days how much you are earning? Here to there and rushing. Just sweating and money, bas, that's it, nothing else. Then why you are not approaching somewhere for getting job and other things? Who will give the job? No, you are a PhD scholar. No. There is first question is that Corona is spreading from the Muslims. Corona जो है वो मुसलमान से जनरेट हुआ है, तो who is ready to give me job? Because my name is Raisa Ansarina, that's why no institutions, no research institute and no colleges and no nothing is ready to give the job for any Muslims and other communities. What is your name? What we will do? What's your name? My name is Raisa Ansari.
In which stream you take PhD? My PhD is from DIVV. Which stream? Which subject? Stream Material Science. Material Physics. science. In which year? MSc in Physics. Which year? Which year? What say? Saal 2011. 2011. March. 11th March 2011. तो मुझे शर्म माननीय आती पंडित जी ने जबरदस्त शर्म आती लखाड़ा है घिन आती है ज्योतिराज तेरे ऊपर। सिंधिया को। और तेरी बुआ देखिए, वो वसुंधरा ज्योतिराज राजस्थान की सिंधिया के मुख्यमंत्री खास थी, उस झालरा पाटन खास क्षेत्र की रिपोर्ट, तेरे को घटना इंडिया सुनाता हूँ। पुलिस डूब न्यूज़ मरो तरफ है, तुम खास लोग। रिपोर्ट। 50 रुपए में आज भी स्मैक की पुड़िया मिलती माँ, जिसे पी के 6 घंटे स्वर्ग लोक सा आनंद। 50 रुपए में हर बार नई लड़की से शारीरिक संसर्ग। यह है आपका चरित्र, यह है ज्योतिरादित्य आपका चरित्र। बाबू क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम सेवा के लिए जा रहे हो। तुम सेवा के लिए नहीं जा रहे हो, अय्याशी के लिए जा रहे हो। और ये दोनों मैनेजरों ने, नरेंद्र बाबू ने और अमित शाह ने, देश को कहां पहुंचा दिया है। देश के सामान्य व्यक्ति के जीवन के बुनियादी हक, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा से महरूम है लोग। उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, सब कुछ तहस नहस हो रहा है, जीडीपी जा रही है। तुम मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे के नाम पे देश को बांट रहे हो, साजिश कर रहे हो आप। कब तक लेके जाओगे देश को इस तरीके से? जरा सोचिए, दिमाग का इस्तेमाल करना सिखाइए लोगों को। एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे तो राष्ट्र का उत्थान होगा, तो राष्ट्र का निर्माण होगा। ज्योतिरादित्य, एक बात सुन लेना बेटा, तेरे पिताजी के साथ काम कर चुका हूं मैं। व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, और राष्ट्र से बड़ी मानवता है। जिस मानवता को तुम तार तार कर रहे हो, एक दिन पछताओगे इस बात के लिए। यहाँ है ना, बस एक बेल्ट लगा के घूमोगे आप। ये दोनों बाबू नरेंद्र और अमित जो बोलेंगे, दिन में रात बताएंगे, तो तुम्हें सैल्यूट मार के रात ही कहना पड़ेगा। इसलिए तुम तो रियासत के प्रतिनिधि हुआ करते थे, समाज की सेवा के लिए तुम आए थे। तुम तो लोकसभा चुनाव नहीं निकाल सके, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हारा चरित्र तो तुम्हारे लोगों ने दिखा दिया ना, तुम कहाँ खड़े हो। अपनी शक्ति को पहचानो और ठीक से आत्मसात करो उसको, और जहां आपकी औकात है वहां खड़े रहो। आप लोग फ्रीलांसर मीडिया हो, यूं समझ लो आप। वो गोदी मीडिया की बात नहीं करता, वो नहीं दिखा सकते क्योंकि उनकी प्राणवायु को काट दिया गया। वो प्राणवायु तभी चलेगी जब उनका नैरेटिव वही चलाएंगे जो वो चाहते हैं। मैं फ्रीलांसर मीडिया के माध्यम से देश के आम आदमी से पूछना चाहता हूं कि इन 6 सालों में, जब से ये गुजराती भाई दोनों आए हैं, देश की सत्ता पर काबिज हुए हैं, इन्होंने देश के हालात क्या कर दिया? आप बताइए। देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, ये नैरेटिव पूरा बदलना चाहते हैं। क्यों? आपके मन में ये प्रश्न उभरना चाहिए। रोजगार के अवसर किधर हैं? उद्योग धंधे खत्म, नोटबंदी आई, जीएसटी आई, ट्रिपल आया, 370 आया, अब घर वापसी आएगा, राम मंदिर आएगा। लाखों मंदिर मैं आपको दिखा सकता हूं जहां दीपक भी नहीं जलते हैं। उन मंदिरों को अच्छा बनाओ ना। अरे इन मंदिरों की जगह बढ़िया स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, मेडिकल कॉलेज खोलो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, रिसर्च की विंग खोलो, तो भारत के बच्चे दुनिया के मस्तक पे भारत का नाम सुशोभित करेंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला है। इस मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में आज तक वो मिला है किसी को? वो पंच महाभूत को चलाने वाला, इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है, आज तक कोई जान सका? सोचिए आप कहाँ ले जा रहे हो देश को आप। दुनिया ड्रोन पे उड़ रही है, बच्चे अपनी बॉडी पे वो ड्रोन का सिस्टम लगा के हवा में उड़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। अरे इंसान बनो यार, दुनिया को इंसानियत की जरूरत है। कौन आपके यहाँ पैसा लगाएगा? मुझे एक चीज बताइए, आप दोनों, मोटा भाई और नरेंद्र भाई, दोनों गुजरात से आते हो ना। गुजरात बिजनेस कैपिटल है आप कहते हो, मैं तो नहीं मानता। सबसे ज्यादा एनपीए गुजरात से आते हैं। और ये भी मैंने अपनी जिंदगी में 63 साल की उम्र में पहली बार देखा कि गुजरात के दोनों आदमी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करते हो आप तो सत्ता को काबिज करके बैठ गए हो। है कौन बैलेंस करेगा उसको? कि पंच महाभूत देख रहे हो, अलग अलग है लेकिन एकाकार हो जाते हैं। तो इस पवित्रता को धारण करते ना, तो भारत दुनिया के मस्तक पे सुशोभित हो सकता था। और 6 साल बहुत लंबी आयु होती है, 1-2 दिन नहीं मिले हैं आपको। 6 साल आपके बीत चुके, क्या दिया आपने देश को सिवाय बर्बादी के? जागिए मेरे देश के मतदाताओं, नरेंद्र बाबू और अमित शाह और ये ज्योतिरादित्य, इनकी जमानतें जब्त करवाइए और नोटा को प्रत्याशी बनाइए और एक नए भारत का निर्माण करिए।